First, we will know about the history of the Python. The Python is developed by the Godot van Rossum. It was released first time in 1991. Currently, there are two versions available in the market of the Python. The first one is 2.x series and second one is 3.x series. The X denotes the version numbers like 2.1, 2.2, 2.3, and similarly at the 3.1, 3.2. The current version available in the market is 3.8. Here are the some features of the Python. The Python has is the simple, easy to learn language. It is the open source language. It is the high level language, interactive, object oriented, interpreted language, and portable language. Now we will understand what these features stand for. The first one is simple and easy to learn. The simple and easy to learn means reading a program written in the Python feels almost like reading a English. मीनिंग ये है कि आप जब कहते हैं कि सिंपल प्रोग्राम है तो डैट मीन्स कि आप जब भी पाइथन को पढ़ेंगे तो वो एक बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, उसे पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि आप सी और जावा लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि उसमें सिंटेक्स बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उसे अंडरस्टूड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। द सेकेंड फीचर इज द open source language. Here the open source means it is free to develop and distribute. That means कोई anyone can freely distribute it, develop any program and or a software and can sell it commercially. There is no restriction on it. इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें प्रोग्राम बनाने में और इसे सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स the programmer should not have to worry about the low level details of the memory management and other things of the low level things। ठीक है, तो इस तरीके की किसी भी तरीके का लो लेवल आपको प्रॉब्लम में मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मोड मीन्स when we are writing a program, there are cases when we are doing the testing and the debugging of the programs. So the testing and the debugging of the program is too easy in the Python. That's why it is an interactive language. And next one is object oriented. Object oriented. The Python is a fully object oriented language. It supports all the functionalities of object orientation. That means data encapsulation, polymorphism, functions with the objects, everything. The next one is interpreted language. Interpreted language means it runs the program line by line and interprets every line at a single time. इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता था कि आपका प्रोग्राम पूरा एक बार में रन करता था, उसमें फिर एक साथ आपको एरर बताता था। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है इट रन लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन रन करेगी और देन आफ्टरवर्ड वन लाइन में आपका एरर्स आएंगे और उस एरर को वो बताता रहेगा। ठीक है, इससे आपको डिबगिंग में बहुत ज़्यादा और एरर फाइंडिंग में काफ़ी मदद मिलती है। And the next one is portable. Portable language. Python is a portable language. Portable means that whatever program we write in the Python, it can be run at any platform on the any hardware and any OS. That means हम अपने प्रोग्राम को किसी भी OS, चाहे हम मैक पे बनाएं, चाहे क्या कहते हैं लाइनेक्स पे बनाएं, चाहे क्या कहते हैं विंडोज़ पे बनाएं, या वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे भी हम उन्हें रन करा सकते हैं। The next one is applications of the Python. Why we study the Python and what are the applications of the Pythons? देखिए Python जो है वो जो major areas हैं where the Python can be applied are these one. The first one is web development. Second one is desktop based GUI based desktop application. The third one is data science and data visualizations, AI and machine learning. The fourth one, fifth one is game development, and sixth one is वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस। देखिए वेब डेवलपमेंट में अभी तक हम लोगों ने जो पुराने पढ़ रखे हैं उसमें PHP और आपका जावा स्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल होता है। अब इसमें पाइथन भी होने लगा है। पाइथन के लिए हम लोग जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं डेट इज जेंगो एंड द पिरामिड, और माइक्रो फ्रेमवर्क जो है वो फ्लैश एंड बॉटल्स हैं। ठीक है, तो दीज आर द 4 फ्रेमवर्क्स दैट आर यूटिलाइज फॉर द वेब डेवलपमेंट यूजिंग द पाइथन।
आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। हम इससे डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि टूल किट्स और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। वो है आपकी WX पाइथन, पाइक्विटी, किंटर एंड कीवी। ये आपकी कुछ लाइब्रेरीज हैं। इनके अलावा भी कई सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम पाइथन के GUI सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। जो मेजर एरिया जहाँ पे पाइथन आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो आपका आता है डेटा साइंस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा साइंस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो इसके लिए जो पाइथन अवेलेबल लाइब्रेरीज, कुछ लाइब्रेरीज मैंने यहाँ डिस्क्राइब करी है, बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। जैसे जो मेजर वन है दैट इज़ पैंडा, नमफाई, साईफाई। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉट, सीबॉर्न एंड मैनी अदर्स। इसी तरीके से AI एंड मशीन लर्निंग के लिए जो आपकी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं दैट इज़ स्किट-लर्न, ओपनसीवी, टेंसरफ्लो, कैरसा एंड पाइटॉर्च। आफ्टर दैट वन द नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया इज गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट के लिए आपकी जो लाइब्रेरी सबसे फेमस है दैट इज पाईगेम, और इस पाइथन में ही बना हुआ एक गेम इंजन है, 3D गेम इंजन जिससे गेम्स डेवलप होते हैं, दैट इज पाइसॉफ्ट। आफ्टर दैट वन द नेक्स्ट वन इज वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग में क्या होता है कि आप जब भी क्या कहते हैं अगर किसी भी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मैनुअली ना करके ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए भी पाइथन ने दो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करी है, डेट इज ब्यूटीफुल स्कोप एंड सेकेंड वन इज स्क्रैपी। These are the companies, list of the companies where the Python is used. Here are lot of the companies that are the famous companies, like there is Yahoo, Google, Pinterest, Yahoo, YouTube, Reddit, Netflix, IBM. Here we will see the financial companies like Goldman Sachs, PayPal. Here are the fintech companies, large technical companies like Uber, Facebook, and the government agencies. These are the list of the major companies. There are many other companies which are going also working on the Python also. Now we have completed what is the history and the features and which companies are working on the Python. Now we will go for the how we will install our Python environment. So first we have to go on the Python official website, that is www.python.org. आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा एंड वी विल गो देयर एंड इंस्टॉल दैट. नाउ वी विल सी हाउ वी विल डू इट. पहले हम गूगल पे जाएंगे. गूगल पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल पे हमने लिखा पाइथन. आपका जो भी हो, विंडोज़ है तो विंडोज़ लिखेंगे, मेरा विंडोज़ है, मैं विंडोज़ लिखूंगा, विंडोज़ 10 एंड आई विल सर्च इस. मैंने सर्च किया तो वो मुझे अपने आप लिंक देगा. मैंने जैसे ही लिंक पे क्लिक करूंगा इट विल ओपन इट. ओके, रिलीजेस दिखाएगा इस तरीके से. इसी तरीके से मैंने डाउनलोड के लिए खोल रखा है. ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, विंडोज़ का रिलीज़ दिखा रखा है. जैसे फर्स्ट वन इज़ दिस वन रिलीज़. आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं. ठीक है, डाउनलोड फॉर पाइथन, और डाउनलोड्स में आके सीधे सीधे वो आपको डाउनलोड पेज पे भी ले जा सकता है. ठीक, डाउनलोड पे गए और देन वी विल डाउनलोड इट डायरेक्टली लाइक दिस वन. ये ओपन करेगा, सेव फाइल करिए. नाउ इट विल बी डाउनलोडेड. और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा कि आपका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, और उसको हम जब हम डाउनलोड कर लेंगे वी विल सी दैट व्हेन आफ्टर द डाउनलोडिंग. तो वो डाउनलोड होने के बाद आपका पाइथन में यहाँ पर आपके मेनू में आ जाएगा, स्टार्ट मेनू. आप यहाँ पर अपना 64 बिट का इंस्टॉल कर लीजिए. 32 बिट हो तो 32 बिट कर लीजिए, 64 हो 64. आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम खुल के आएगा. ठीक है, यहीं पर हम अपना, इसी को हम पाइथन शेल कहते हैं.
वैसे पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो देयर आर 2 सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज, ये आपका क्या कहते हैं, IDLE है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है। और सेकेंड वन इज कमांड प्रॉम्प्ट वाला है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इसमें हम शेल वाला यूज़ करेंगे। ओके, देखिए जब आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपका डाउनलोड कंप्लीट हो गया होगा, तो यहाँ इस तरीके से आपका डाउनलोड दिखाएगा। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा है मेरा पाइथन, और मैं जब इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड टू पाथ करिए, लॉन्च एंड देन इंस्टॉल नो। ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, और देन आफ्टरवर्ड हम यहाँ पर प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है डेट इज़ योर प्रोग्रामिंग साइकिल इन पाइथन। जब भी हम पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं तो एक साइकिल को फॉलो करता है। दिस इज द सिंपल साइकिल। सबसे पहला स्टेप जो होता है डेट इज योर राइट और एडिट। आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोग्राम को लिखोगे, राइट वन। देन द सेकेंड वन इज रन विद द इनपुट। आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इट विल रन विद सम इनपुट, कुछ इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रन करेगा। अगर आप उसे रन कराने के बाद आप सेकेंड फिर क्या चेक करेंगे कि इज द रिजल्ट इज ओके। इफ द रिजल्ट इज ओके देन वी विल रन इट फॉर दी मोर आउटपुट, और इसको हम रन कराते रहेंगे। अगर आपका क्या कहते हैं रिजल्ट ओके नहीं है तो देन आप क्या करोगे, अगर रिजल्ट ओके नहीं है तो देन आप फिर अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ एरर होगी, इस वजह से आपका रिजल्ट सही नहीं आया होगा, तो आप वापस उसे एडिट करोगे। एडिट करने के बाद फिर से आप प्रोग्राम को रन कराओगे, और ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक कि आपका रिजल्ट आउटपुट सही नहीं आ जाता है। और देन आफ्टरवर्ड जब रिजल्ट आउटपुट सही आ जाएगा तो फर्दर आप दूसरे आउटपुट्स के लिए उसे रन कराओगे, और जब तक कराओगे जब तक कि सारे इनपुट्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें दो नंबर्स का सम करना है तो हमने इस तरीके से नंबर लिए A एंड B, अब और उनका सम कराया। हमने A की वैल्यू 5 ली और B की वैल्यू क्या कहते हैं 4 ली, तो उनका सम कितना आना चाहिए 9। अगर हमने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा होगा तो 9 आएगा आउटपुट, और अगर हमने कुछ गलत करा होगा तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो जब अगर एरर आएगी तो हम अपने प्रोग्राम को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अगर सही है 9 आ रहा है तो देन हम दूसरे आउटपुट्स देंगे। जैसे फर्स्ट टाइम हमने 4 एंड 5 दिया, नेक्स्ट टाइम हम इसे 3 और 4 भी दे सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। इसके लिए भी इस तरीके से वेरियस इनपुट्स के लिए हमने प्रोग्राम को चेक करेंगे, और प्रोग्राम अगर सही होगा तो हम आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई पाइथन साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।